میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمارے ذہن سے کھولا ہے کہ کس طور پر خدا کی پرستش اور ستائش ہونی چاہیے. آمین. اور خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین کیا اور یہ داؤد نے دیکھا ہے. وہ تو آسمان پر یہ جو کہنا کہ وہ اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے یہ داؤد کا ایکسپیرینس تھا. حالانکہ خدا اپنے تخت پر برابر تخت نشین ہے. یہ یاد رکھیے وہ اسے تخت نشین ہونے کی ضرورت نہیں, وہ تخت نشین ہے. بات سمجھائی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تخت نشین ہے. اور جیسے ابھی ادھر سے والی وہ اس کا تخت عبدالآباد کیا ہے؟ قائم ہے. تو مقصد ہے کہ اس کا تخت ہمیشہ قائم ہے. لیکن داؤد کو یہ ایکسپیرینس ملا. کیا ایکسپیرینس ملا؟ کہ خدا اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے. یہ صیون میں اس کو یہ تجربہ ملا تھا. آمین. کہاں پر ملا سے تجربہ؟ صیون میں. جب اس نے اپنے خیمہ میں جو اس نے عہد کے صندوق کے لیے کھڑا کیا تھا وہاں پر پرستش کے طریقوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. اس کے طریقے نہیں تھے. یہ سب کچھ جو اس نے آسمان پر جو آسمانی مکاشفہ جو سے حاصل ہوا اس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور یوں یہ ڈیوڈک پیٹرنز بن گئے, یعنی داؤد کے طریقے بن گئے. آمین. جو یونیک تھے اور بڑے حیران کن تھے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کلیسیا کے اندر ہر ایک شخص پرستش اور ستائش میں بڑا متحرک ہو. اور یہ جو جھنڈوں کو لہرانا, بینرز کو لہرانا, یہ پہلی بات نہیں ہے. اسرائیل میں ہر جو ہے جو ان کا قبیلہ تھا ان کا خاص جھنڈا تھا. آمین. خاص جھنڈا تھا اور وہ بینر سے لہراتے تھے اور خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتے تھے. اس لیے جب ہم ستائش اور پرستش کرتے ہیں ہم خداوند کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو لہرائیں, اپنی آوازوں کو کھولیں اور پھر کیا کریں؟ مجھے یہ بینر دیں, کیا کریں؟ ٹھیک ہے, یہ میں نے اسپیشل بنائے ہیں. آپ پرستش میں جو ہے یہ شو کرتے ہیں. یہ آپ کو کیا کریں گے؟ یہ آپ نے پڑھیں گے مجھے خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کی پرستش اور ستائش کرنی ہے. Praise the Lord. یہ دشمن کے سامنے جو ہے اس کی شکست کو بیان کرنا ہے. آمین. آپ اس کی شکست کو جو ہے بیان کریں. میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہر یہ جو درباروں میں اور جو ہے پیر و فقیروں میں ان کے جھنڈے ہوتے ہیں. اور میں حقیقت بتاؤں کہ ہمارے جو ہے ننیال میں جو ہے پیری فقیری تھی اور وہاں پر ان جھنڈے کھڑے کیے تھے. اور ہم ہر جو ہے وہ جون کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے, میلہ ہوتا تھا اور وہاں پر جھنڈے اٹھا کر جو ہے ڈھول کے سامنے لہراتے تھے. اور میں بھی ان میں شامل ہوا کرتا تھا اور میں بھی جھنڈا پکڑتا تھا. لیکن جو ہے یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اپنے خداوند کے لیے جھنڈے بلند کرنے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور یہ ڈیز سٹارٹ ہیں. میں پھر سے آپ کو بتا دوں آخری دن جو ہے یہ آخری دن چل رہے ہیں. اس میں ضرور ہے کہ خدا کی جھنڈے لہرائے جائیں. اس کے لیے اپنے منہ کو کھولا جائے, اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جائے. مت جھجکیے, مت جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرے. یہ خداوند اور آپ کا معاملہ ہے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں, آپ خدا کی ستائش کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو کون سی چیز آپ کو روکے ہوئے ہے؟ کس چیز نے آپ کا منہ بند کیا ہوا ہے؟ کس چیز نے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ میرے بھائی, پیارے بہنوں, بھائیوں, عزیزوں, اٹھیے, ناچیے, کودیے, خدا کی پرستش کیے. داؤد کو یہ چیز نہ روک سکی جب اس نے دیکھا کہ خدا کا عہد کا صندوق آ رہا ہے, خدا کا تخت میرے گھر میں آ رہا ہے, میرے شہر میں آ رہا ہے. اس نے اپنی خلت اتار دی اور وہ ناچنے لگا. بائبل مقدس فرماتی ہے وہ اپنے پورے زور سے ناچنے لگا.
आमीन। इसने कितने जोर से, पूरे जोर से नाचने लगा। और ये बेबयान है उसका नाचना। वो जोर से दफ और झांझ बजाने लगा और नाचता हुआ, मालूम नहीं वो कितनी देर तक नाचता हुआ आया। और वो जो है उस खेमा में उसने उसको रखा, और वो कितना हाँफता होगा, लेकिन ये उसका हाँफना खुशी का हाँफना था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको भरूंगा, जब आप प्रस्तिश और सताइश करती हैं तो मत अपने हाथ ऐसे रखा करें, और मत जो है मुंह उठा के बैठा रहे करें। अगर आपको गीत नहीं आता, या गीत की किताब खरीदिए और गीत की कॉपी लीजिए और इसे गाइए, इसे याद कीजिए। और नहीं तो कम से कम ताली तो बजाई जा सकती है ना। हाथ लहराने में तो कोई जो है मजायका नहीं। आमीन। जो है अपने मुंह को खोलिए, नारे तो मारे जा सकते हैं, शाबाश तो किया जा सकता है ना, नारे तो मारे जा सकते हैं, हालेलुया की आवाज तो बुलंद की जा सकती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि आप इसी से जो आपने बरकत पाई, जो आपको आपके अंदर हलचल मची है, वो 1 मिनट के लिए आपके पास मौका होगा। सिर्फ 10 मिनट हम इसमें से लेंगे, 1 मिनट आपके पास होगा कि आप आइए और अपनी उस बरकत को जो आपने इस सीरीज के वसीले से पाई है, उसको जो है कलीसिया के साथ बयान करें। आप एक दूसरे के साथ शेयर करें कि मुझे इस सीरीज से ये बरकत मिली है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है जिसके अंदर ये दिलेरी है, वो पहले आकर इसको बयान करेगा। खुदा परसत ने कहा था कि 1 मिनट आपको हकीकत बताऊं कि ये मोटिवेशन है कि इन्होंने ये सीखा कि किस तौर पर जो है पूरे जोर के साथ प्रस्तुत करनी है, वो करते हैं। और इसी इतने जोर से प्रस्तुत करते हैं कि वो इतने जवान हो गए कि 10 साल छोटे हो गए। हालेलुया। ऐसा ही लगता है कि वो 10-20 साल छोटे ही हैं। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें अपना कलाम बख्शा है। ये कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी तरबियत करता है। हमने सीखा है कि हमने किस तौर पर अपने खुदावंद की प्रस्तुति करनी है। इस कलाम में छोटी छोटी बारीकियां थी जो समझने वाली थी, और जिन्होंने समझा है खुदावंद उनको बरकत दे। मैंने भी समझा है इसको, और जो सबसे गहरी बात मैंने सीखी है वो ये है कि दाऊद ने पूरे तौर पर अपने खुदावंद की प्रस्तुति की थी, पूरे दिल के साथ उसने प्रस्तुति की थी। ना सिर्फ उसके हाथ थे, ना उसकी बॉडी थी, उसका दिल, दिमाग, उसकी एक एक चीज अपने खुदावंद की प्रस्तुति कर रही थी। तो हमें भी अपने खुदावंद की प्रस्तुति, जब हम उसकी बारगाह में आते हैं, सब कुछ भूल जाएं, पूरे तौर पर ताबिया होके अपने खुदावंद की प्रस्तुति करें। हालेलुया। तो जब प्रस्तुति करते हैं तो यरूं की दीवारें भी गिरती हैं, और इब्लीस के लगाए हुए रखने भी हमारे घरों में से बंद हो जाते हैं। आमीन। मैंने ये पादर साहब के साथ ये शेयर किया था कि मैं दाऊद का खेमा खड़ा करना चाहती। पूछा कि आप कलाम से क्या बरकत पाई है, तो उन्होंने कहा कि मैं कलाम को सुनकर ऐसे नहीं जो निकाल देती हूँ, मैं इसके ऊपर सोचती हूँ, और ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे खानदान में दाऊद का खेमा लगे। आमीन। यानी वो प्रस्तुति और सताइश को ऊंचा करना चाहती है। गॉड ब्लेस यू। आइए, और किसके दिल के अंदर ये खुशी और शादमानी है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो इस कलाम से मैंने सीखा है वो ये है कि हम पहले जो होता है इज्तिमाई तौर पर हम इस खेमा को खड़ा करें, लेकिन इससे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पर्सनली तौर पर इस खेमा को अपने दिल में खड़ा करने वाले बने। क्योंकि अगर हम इसे पर्सनली तौर पर अपने दिल में इस खेमा को खड़ा नहीं करेंगे तो हम इज्तिमाई तौर पर नाकाम हो जाएंगे। हम खुदावन के स्पिरिट को यहाँ पर नहीं, अपने अंदर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब स्पिरिट पाकरू हमारे अंदर नहीं है तो काम नहीं करेगा। ये मेरी लर्निंग है और मैं आप सबको भी कहूँगी। मैंने अपनी लाइफ में मैं 2014 से मैं वर्शिप कर रही हूँ, खिदमत में हूँ, लेकिन इस साल मैंने एक अलग तौर पर वर्शिप को सीखा है, और मैंने इस चीज़ को रखा कि मैं पहले अपने आप को इनफरादी तौर पर स्ट्रॉन्ग करूँ, खुदा की हजूरी में ठहरूँ, उसकी वर्शिप को उठाऊँ इनफरादी तौर पर तन्हाई में, और फिर मैं इस काबिल होंगी कि मैं इज्तिमाई तौर पर खुदा के खेमा में हेल्प आउट करूँ कि हम सारे मिलकर उसका जो दाऊद का खेमा है उस तौर पर से कायम रख सकें। इसकी इंस्पायरेशन जब पास्टर जी ने बताया कि दाऊद का स्टार्टिंग पॉइंट ही ये था कि वो अकेले में
जब वो भेड़ें चराता था अपनी वर्क प्लेस पे, वो जहाँ भी होता था वो वर्शिप को उठाता था अकेले में, और फिर खुदावन ने उसे इस काबिल बनाया कि वो एक खेमा को उठा सके और उसमें हजारों लोग वर्शिप को उठा सके। हालेलुया, आमीन। यीशु के मसीह नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैंने इस सीरीज से खुद भी बहुत बरकत पाई है, और मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी आज झंडे लहरा रहे थे। शासिया की बेटी छोटी बहन, उसको मैंने देखा। आप यकीन करें, प्रस्तुति में बता देती है। कोई अपने जितने भी हमारे उस हैं, इनको हरकत करके देखिए। लब, कान, गला, फेफड़े, हम सेहत की तरफ चले जाते हैं, हमें ज़िंदगी मिलती है। और जहाँ मैं बात जो करना चाहती हूँ, मैं अपने छोटे तोते के लिए, आप सब जानते हैं हारमोन तबला बजाता है, हारमोन गीत गाता है। और आप देखें, जब अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी बच्चों को, तो बच्चे वही कुछ करेंगे जो वो देख रहे हैं। अपने बच्चों के सामने रात को बैठकर प्रस्तुति करें, ताकि उनका माइंड दुनिया की मौसीकी से अलग हो जाए, और अपने खुदावंद की हुजूरी में हलल करें, तहलल करें, तौब करें, शुबात करें, ज़मीर करें, और अपने आप को डिवोट कर दें एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर। खुदावंद खुदा की हुजूरी, मेरा ये खुदावंद की तरफ से खुदावंद की हुजूरी में बड़ी शुक्रगुजारी है कि हारमोन डे बाय डे वो अगर बैठा है तो अपने टांगों के ऊपर तबला बजाना शुरू कर देता है। तब टांगों के ऊपर अगर उसको कोई परात मिलेगी, उसके ऊपर, डिब्बे के ऊपर, हर एक के ऊपर उसका वो आ जाता है। इवन मेरे हाथ उसको मिलेंगे, उसको भी ऐसे ऐसे करना। इसका मतलब ये है उसकी उंगलियां खुदावंद के इख्तियार में आ गई हैं। खुदावंद हमारे जिस्मों को और उनके सारे जितने भी अज़ा हैं उनको यूटिलाइज करता है अपने लिए, ये बात है। और आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद खुदा के मंसूर नजर बच्चे पाए जाएंगे। आमीन। अपने बच्चों पर ध्यान कीजिए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू। खुदा में आप सबकी सलामती हो। जैसे आपको पता है, मैं पहले नेस्ले में था। 2019 दिसंबर तक मेरी नेस्ले में जॉब रही। जब 2020 शुरू हुआ तो मैं समझता था कि हाँ जी, अब थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। हमने एक स्टोर खोला, मैं 2-3 माह उधर ड्यूटी दी। अब जो ही थोड़ा रिलैक्स फील किया तो साथ ही कोरोना आ गया। कोरोना जो है वो उसने सबको बिठा दिया। मेरी गवाही है, मैं क्योंकि पाठ साहब को उस कोरोना में इन्होंने मुझे जितना मोटिवेट किया, यानी कह लें कि माँ बाप के बाद, खुदावंद के बाद माँ बाप, और माँ बाप के बाद आपके प्रीस्ट, और खुदावंद में झुकने वाले, आपके लिए दुआएं करने वाले, वो आपके खादम होते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जुलाई अगस्त में जो है वो हमारे साथ जो है वो फैमिली मीटिंग की। मैंने ड्यूटी शुरू की क्योंकि मेरे, आप जानते हैं, घराने में जोरदार जो है वो तलीम का वो जोर शोर है। बेटा मेरा अगले माह में ग्रेजुएट हो जाएगा, हारून साहब, और बीबीए ऑनर कर रहे हैं। दोनों बेटियां जो है वो भी यूनिवर्सिटी जाती हैं। तो मैंने खुदावन से इल्तिजा की कि खुदावन, हम तो तेरे नाम से जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये इतना जोर आया कि इसने हमें गाड़ी बैठा दिया, या हमारे अखराजात जो है वो पिसके रह गए हैं। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि मुझे नौकरी उस दौर में मिल गई। अब नौकरी तो मिली, एक नई आजमाइश नौकरी की है, एक जगह नहीं, 2 जगह बल्कि 3 जगह की। पैसे किसी ने नहीं दिए, किसी ने आधी तनख्वाह दी, किसी ने थोड़े दिए। मैं बड़ साहब को साथ साथ बता रहा था, कहते हाँ जी अब, मैं क्या अब पानी थोड़ा सा कम हुआ है, यानी वो नाक तक आ जाए तो वो बंदा तो डूब जाता है। तो मैंने कहा अब थोड़ा नीचे है। फिर अगले इतवार का मैं कहा थोड़ा नीचे है।
जॉब फिर तो अक्टूबर नवंबर में जॉब छूट गई। फिर दिसंबर में साल खत्म होने से पहले खुदावन उस साल का सारा जो है वो हिसाब जो है वो बराबर कर दिया और एक अच्छी जॉब जो है, जैसे मैं नेस्ले में काम करता था वैसे ही अलाइड मार्केटिंग में एक नए ब्रांड के साथ उन्होंने मुझे बिजनेस मैनेजर जो है वो रखा और फूड डिवीजन जो है वो नया शुरू किया था उसका इंचार्ज बना दिया। हालेलुया। मेरे पास आपके और पीछे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये मेरा बड़ा जोर है, सिस्टर जी हैं, और मैं शुक्र करता हूँ कि इन्होंने हमारे घराने को बड़ा मजबूत किया है। और हम पिलर ऑफ ट्रूथ के, यानी ये पिलर जो है वो सतून होते हैं, तो हम सतून हैं। हालेलुया। और ये तभी हो सकता है, ये हर एक सीरीज में हमने जोर पकड़ा, लेकिन ये सीरीज जो है वो हमें इतना मोटिवेट किया कि पूरी दुनिया में यानी कह लो लोग बेकार हो गए, बिल्कुल जो है वो उन्होंने अपना सारा कुछ गंवा दिया। लेकिन तमीर नौ, रेस्टोरेशन, ये सिर्फ खुदावंद खुदा के वसीला से हो सकती है, दुआ में मजबूत होने से हो सकती है। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस सीरीज पे जो रहलम, सताइश और प्रस्तिश के साथ जो रूहानी एनवायरनमेंट प्रस्तिश के साथ हो सकती है वो आप सब जानते हैं और आप देखते हैं। अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद की ममूरी को महसूस करना और खुदावंद के तख्त को देखना है, तो फिर मगन हो जाए, फिर डिवोशन करें, मुंह को खोलें, तो तब फिर खुदावंद अपना आप, अपना जलाल दिखाता है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस सीरीज के वसीला से बड़ी बरकत पाई है। हम ना सिर्फ खुदावंद के खैमा को खड़ा करते बल्कि जिंदगियां बहाल होती और खुदावंद हमें दुनिया में सरफराज करता है। आमीन। इज्जत और सारा जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। और इस वक्त मैं अपने भाई आकाश और अपनी बहन कवल को प्लीज खड़े हों, हम चर्च में वेलकम कहते हैं। खुदा का शुक्र हो कि इन्होंने ज्वाइन किया, और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया, लास्ट मैं फ्राइडे को के पास था और उन्होंने मसीह को कबूल किया और मसीह के साथ और गहरे तौर पर चलने की कुव्वत और जोर पाए, मसीह को शख्सी तौर पर कबूल किया और ये बंदो बहन निकाह का हम बैप्टिज्म भी देंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। ये भाई शहबाज के भतीजे हैं, खुदा उनका एक बेटा है, खुदा आप सबको बरकत दे। आज एक बड़ी खास सीरीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और ये समझ लीजिए, आपने वर्शिप करना सीखा है, खुदा की प्रस्तुति करना सीखा है, और अब आपको कुछ बाहर करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? अंदर आप खुदा की प्रस्तुति करेंगे और बाहर क्या करेंगे? खुदावंद की खिदमत। लिहाजा अब ये साल चर्च के लिए खिदमत का साल होगा। ये साल किसका होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इधर नहीं, बल्कि क्या होगा, सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? सब इन्वॉल्व होंगे। और ये सीरीज आपको मोटिवेट करेगी इस काम के लिए। और समझ लीजिए कि ये आपको एवेंजलिज्म के लिए, बशारत के लिए खड़ा करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। किस काम के लिए? बोलिए, खुदावंद की बशारत देने के लिए। ठीक है। और मेरी गुजारिश होगी कि आप इस सारी सीरीज को बड़े गौर से सुनिए, और आज इसका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और अगली दफ़ा आपको और ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन दूंगा कि आप खुदावंद में गहरे तौर पर जो है इस काबिल हो जाएं कि आप खुदावंद की बशारत देने के लिए जो है खड़े हो जाएं, गॉस्पेल को प्रीच करने के काबिल हो जाएं। दूसरी बात, अगले माह हर फ्राइडे को, ठीक है, अगले माह हर फ्राइडे को मैं एक जो है आपके लिए
एक सिलसिला लेकर आ रहा हूँ, एक ट्रेनिंग है जो खिदमत करने वाले हैं उसको ज़रूर सीखें। इसके ज़रिए से आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जिससे आप जो है दूसरे को किस तौर पर मसीह के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है एवेंजलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप बशारत दें और उनको मसीह के पास लेकर आएंगे। ये 3 months 10 हफ्तों की ये ट्रेनिंग होगी और इसमें जो करना चाहता है वो कमिटेड होगा कि इन 10 हफ्तों के लिए जो है वो कोई छुट्टी नहीं करेगा। और इसके लिए आप इनरोल हों कि मैं ये करना चाहता हूँ। इससे आप अपने वर्क प्लेस पर, आप अपनी जगह के ऊपर, और आपको मोटिवेशन होगी कि आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, लेकिन आपको जो है इसके ज़रिए से बोलना सिखाया जाएगा। आमीन। ठीक है, मार्च 5 तारीख को जुमे के दिन 6 बजे से हम इसका सिलसिला स्टार्ट करेंगे और मेरी गुजारिश है कि आप इसके लिए अपने आप को पेश करें और हमारे लिए भी दुआ करें। आमीन। आज जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका जो सब्जेक्ट है प्रोटोन बिलीवर्स। क्या है? प्रोटोन बिलीवर्स। बोलिए। आपने प्रोटोन सुना है? ये जो प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये उसकी बात नहीं है, बेशक वो भी इसी का एक सिलसिला है। तो ये बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बच्चों को दिखा दे, फिर मैं शुरू करता हूँ। उतनी देर में आप फिर से बोलिए कौन सी सीरीज है? प्रोटोन बिलीवर। फिर से बोलिए, एक दूसरे को बोलिए। शायद अभी प्रोटोन का आपको शायद पता ना चले, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को बोल सकते हैं कि प्रोटोन बिलीवर्स। ठीक है, कौन से बिलीवर्स हैं? प्रोटोन बिलीवर। प्रोटॉन वैसे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है वो उसका कोई जो है चार्ज नहीं होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है, इसे उसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। हाँ, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, ये भी ठीक है, पॉजिटिव। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बोलिए आमीन। आमीन। प्रोटोन बिलीवर्स, ये ग्रीक वर्ड है प्रोटोन। प्रोटोन यूनानी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? यूनानी ये जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब होता है सबसे पहले, अव्वल, पहले। क्या है? सबसे पहले। किसमें? वक्त में, जगह में, तरतीब में या अहमियत में। आमीन। प्रोटोन का क्या मतलब है? फर्स्ट। प्रोटोन का क्या मतलब है? फिर से बोलिए, एक दूसरे को बोलिए। फर्स्ट बिलीवर्स। ठीक है, फर्स्ट बिलीवर। आमीन। पहले ईमानदार, पहले ईमानदार, फर्स्ट बिलीवर, अव्वल बिलीवर। इसे कहेंगे अव्वल बिलीवर। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। आमीन। किसमें? वक्त में, जगह में, तरतीब में और अहमियत में। आमीन। किस में? बोलिए, वक्त में, जगह, तरतीब और अहमियत। फिर से बोलिए। ठीक है, इसका मतलब है शुरू में, खास तौर पर सबसे पहले। ठीक है, जब तरतीब में आएगी तो उसका क्या नाम लेगा? सबसे पहले। इसका हवाला सुनिए जहां पर ये इसका जिक्र आया है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 28वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 28वीं आयत। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले। आमीन। हमारा जो एम्फोसाइज है वो पहले के ऊपर है। क्या है?
पहले रसूल, ठीक है। यानी यह तरतीब के मुताबिक कि रसूलों का मकाम क्या आता है, उनकी जगह क्या आती है, पहले। आमीन। किसके ऊपर सबसे पहले की जब बात की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी, बोलिए, रसूलों की। पहले रसूल, प्रोटोन अपोस्टल्स, क्या कहा जाएगा, प्रोटोन अपोस्टल्स, ठीक है, पहले रसूल। आमीन। चुनाचे जब आप पहले बिलीवर की बात कहेंगे तो आपको आपका जहन, आपका ख्याल, आपकी सोच, आपकी अहमियत, आपकी जगह, आपकी तरतीब आपके सामने आ जाएगी। आमीन। आप सेकंड बिलीवर्स हैं या फर्स्ट बिलीवर हैं, आप जो है 10th बिलीवर्स हैं या फर्स्ट बिलीवर हैं, आप अव्वल हैं या फिर जो है वो 10 दर्जे वाले जो है वो बिलीवर हैं। आमीन। पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद। फिर से सुनिए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद। यानी जब आप प्रोटोन बिलीवर्स की बात करते हैं तो क्या मतलब है इसका, पहले में। आमीन। शुरू में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रसूली लोग, रसूली जो है, रसूली लोग पहले लोग हैं। आमीन। रसूली लोग क्या है, वो पहले लोग हैं। आमीन। खुदा की कभी ये ख्वाहिश नहीं है कि सिर्फ रसूल ही हों। अब गौर से सुनिए, खुदा की ख्वाहिश नहीं है कि सिर्फ रसूल हों, बल्कि क्या हो, खुदा का इरादा है कि रसूली ईमानदारों की जमायत हो। आमीन। किसकी जमायत हो, बोलिए, रसूली ईमानदार उसे चाहिए। रसूल अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन उसे किस चीज की जरूरत है, बोलिए, रसूली ईमानदार। एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जिसे हम कहेंगे प्रोटोन बिलीवर्स की जरूरत है उसे। आमीन। रसूली चर्च और रसूली ईमान सबसे पहले और आगे हों। आमीन। रसूल सबसे पहले हैं, तो यह जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं, जो पहले ईमानदार हैं, वो भी क्या होंगे, सबसे पहले। आमीन। जिसके लिए खुदा काम करना चाहता है, खुदा रसूलों को इस्तेमाल करता रहा, खुदा ने रसूलों को चुना कि वो क्या करें, ये पहले रसूल चुने गए हैं। आमीन। और उनको क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। खुदा प्रोटोन बिलीवर्स चाहता है, जिस तरह से प्रोटोन अपोस्टल्स लिए हैं, उससे पहले रसूल। यानी ऑर्डर की बात की जाएगी, तरतीब की बात की जाएगी, तो सबसे पहला नाम किसका आएगा, बोलिए। आपको समझ आ रही है, बोलिए। आप दूसरे को कहे कि मुझे समझ आई है। आमीन। क्या आप प्रोटोन ईमानदार हैं, यानी पहले ईमानदार? क्या आप पहले ईमानदार की ग्रोह में से हैं? क्या आप पहले चर्च का हिस्सा हैं? आमीन। जब प्रोटोन चर्च का हिस्सा है, ये चीजें आपको सीखनी होंगी। और जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखेंगे, जब आप प्रोटोन बिलीवर नहीं होंगे, तो याद रखिए कि आप हमेशा चर्च के अंदर जो है वो आते रहेंगे और सीखते रहेंगे, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। रसूल कुछ करते हैं। आमीन। और प्रोटोन बिलीवर्स जो है वो क्या करते हैं, वो कुछ करेंगे। आमीन। और याद रखिए, जब ईमानदारों में, जब बिलीवर्स में रसूली स्पिरिट होगी, ठीक है, अपोस्टोलिक स्पिरिट होगी, तो वो प्रोटोन ईमानदार कहलाएंगे। आमीन। वो प्रोटोन बिलीवर्स कहलाएंगे, वो पहले ईमानदार कहलाएंगे। आमीन। आपको थोड़ा सा जो है इस मैसेज को गौर से सुनना है, ताकि आप अगले मैसेजेस को आप सुन सकें। जब आप अपोस्टोलिक स्पिरिट चर्च में होगी, तो हम ईमानदारों की ऐसी कंपनी देखेंगे जो रसूली कुव्वत में चलेगी। आमीन। जैसा रसूल अब उस कुव्वत के साथ मूव कर रहे थे, और जिसके जरिए से आगे देखिए कि उम्मतों, कौमों, मुल्कों के अंदर हलचल मच गई, और जो है वो सब मसीह के दीन में आना शुरू हो गए। इसी तरह जब आपकी जिंदगी के अंदर अपोस्टोलिक स्पिरिट होगी, आपके अंदर रसूली जो है वो कुव्वत और जोर और स्पिरिट होगी, तो आप भी कुछ करने वाले होंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब गौर से सुनिए कि इन प्रोटोन जो बिलीवर्स हैं, उनके अंदर क्या खुसूसियत होती है।
जब आपकी जिंदगी के अंदर अपोस्टोलिक स्पिरिट होगी, और आपको पता है रसूल जिसे अपोस्टल्स कहा जाता है, ये यूनानी लफ्ज है अपोस्टोलोस, जिसका मतलब होता है भेजे हुए। आमीन। क्या कहा जाता है? अब भेजे हुए। लिहाजा मैं प्रोटोन बिलीवर्स को अपोस्टोलिक बिलीवर भी कहूंगा, ठीक है? जो अपोस्टल या प्रोटोन बिलीवर हैं, जो पहले ईमानदार हैं, जो अव्वल ईमानदार हैं, वो फिर क्या कहलाते हैं? रसूली ईमानदार भी कहलाते हैं। आमीन। उनको क्या कहा जा सकता है? अपोस्टोलिक बिलीवर। आमीन। क्या आप अव्वल जो है वो बिलीवर हैं? आप अव्वल दर्जे के बिलीवर हैं? आमीन। अब दूसरे दर्जे में कौन आता है? नबी आता है। जब आप अपने आप को अव्वल जो है वो बिलीवर कहेंगे, अव्वल ईमानदार कहेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है अपोस्टोलिक स्पिरिट रखते हैं, आप रसूली जो है रूह के अंदर चल रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर रसूली या स्पिरिट काम नहीं करती है, तो फिर आप प्रोटोन बिलीवर नहीं हैं, आप अव्वल दर्जे के ईमानदार नहीं हैं। और हमें क्या बनने की जरूरत है? बोलिए, अव्वल दर्जे के ईमानदार। मुझे किस चीज का, कौन सा ईमानदार बनना है? बोलिए, अव्वल दर्जे का ईमानदार, अव्वल बिलीवर, फर्स्ट बिलीवर, प्रोटोन बिलीवर। आमीन। कौन सा बिलीवर? प्रोटोन बिलीवर, पहला ईमानदार। आमीन। पहले ईमानदार। जो सेंट वन हैं, जो भेजे हुए हैं, वो किसके सबब से जिंदा होते हैं? भेजने वाले के, सेंडर के। अब सेंडर कौन है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत में कहा है, गौर से सुनिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें क्या करता हूँ? भेजता हूँ। तो गोया जो है प्रोटोन बिलीवर्स कौन है? जो भेजे गए हैं। आमीन। जो पहले ईमानदार कौन है? जो भेजे गए हैं। आमीन। इसलिए उनको पहला दर्जा मिला है। जो पहले ईमानदार हैं, वो क्या कहलाते हैं? भेजे हुए। वो क्या कहलाते हैं? बोलिए। तो क्या आप भेजे हुए हैं? आप भेजे हुए हैं? अगर आप भेजे हुए हैं तो आप क्या कहलाएंगे? बोलिए। अगर आप भेजे हुए हैं तो क्या कहलाएंगे? बोलिए। क्या कहलाएंगे? बोलिए। क्या आपको समझ आ रही है? कोई उठकर एक बता सकता है कि मैंने क्या कहा? कोई उठकर दिमाग में से, जिसके अंदर नहीं है। प्रोटोन बिलीवर्स कौन है? प्रोटोन बिलीवर्स किस तरह है? भेजे हुए कौन कहलाते हैं? इधर से कोई बताएगा? जो भेजे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई डैनियल खड़े होकर बताएगा। वो कौन है? प्रोटोन बिलीवर। प्रोटोन बिलीवर्स जो है भेजे हुए प्रोटोन बिलीवर्स कहलाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो इस बात से आगाह है कि हम भेजे हुए हैं। वो इस बात से क्या है? आगाह है कि हम क्या हैं? भेजे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो भेजने वाले के सबब से क्या है? जिंदा है। यूहन्ना 6वां बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। आमीन। लिहाजा जो प्रोटोन बिलीवर हैं, जो भेजे हुए ईमानदार हैं, वो किसके सबब से जिंदा है? भेजे हुए के सबब से। आमीन। हमें किसने भेजा है? वो यीशु मसीह ने भेजा है। मुझे किसने भेजा है? यीशु मसीह ने भेजा है। आमीन। और मैं उस भेजने वाले के सबब से क्या हूं? जिंदा हूं। कैसे? यीशु मसीह के बाबत यीशु मसीह ने कहा, मैं बाप के सबब से जिंदा हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा मैं भी भेजा गया हूं। मैं किसके सबब से जिंदा हूं?
बाप के सबब से, मसीह के सबब से। लिहाजा मैं अपनी जिंदगी और अपनी कुव्वत अपने सैंडल के सबब से यह हासिल करता रहता हूँ। आमीन। मेरी जिंदगी और मेरी कुव्वत किसके जरिए से है? बोलिए, यीशु मसीह के वसीले से, जिसने मुझे क्या किया है? भेजा है। आमीन। लिहाजा अगर आप प्रोटोन बलीवर्स हैं, अगर आप भेजे हुए ईमानदार हैं, घबराइए मत, क्योंकि आपकी कुव्वत और आपकी जिंदगी उसके सबब से है। आमीन। आपकी कुव्वत और आपका जोर और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो भेजने वाले के सबब से है। हम क्यों जो है वो कमजोर होते हैं और भेजे हुए जो है वो क्या करते हैं? वो लागरी का सबूत क्यों देते हैं? क्या वो अपने सबब से कुछ करना चाहते हैं? याद रखिए, नहीं, क्योंकि ये कुव्वत, ये जोर जो है कहां से हासिल होता है? ये भेजने वाले से हासिल होता है। मसीह जो है पूरे इस्राएल में फिरता रहा है, उसका सबब क्या है? भेजने वाले के सबब से। आमीन। अगर आप जो है चर्च में हैं और फिर आप काम करेंगे उसके लिए, तो फिर जो है इसकी सारी कुव्वत या इसका सारा जोर आप कहां से हासिल करेंगे? बोलिए, भेजने वाले के सबब से। जो है वो जो भेजे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? वो उसके काम की जो है गवाही देते हैं। आमीन। जब हम यूहन्ना 5वां बाब 36वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वो जहां पे भेजने वाले की गवाही देते हैं। आमीन। चुनाचे यह है, हमें किस बात की गवाही देनी है? बोलिए, प्रोटोन बलीवर क्या करते हैं? जो पहले ईमानदार हैं या अव्वल दर्जे के ईमानदार, वो क्या करते हैं? वो अपने भेजने वाले की क्या करते हैं? बोलिए, क्या आप यह भेजे हुए हैं? क्या आप प्रोटोन बलीवर हैं? अगर आप प्रोटोन बलीवर हैं, पहली बात, आप उससे जिंदगी और कुव्वत हासिल करेंगे। दूसरी बात, आप उसका काम करेंगे, आप उसकी गवाही देंगे। हालेलुया। अब तीसरी बात सुनिए, वो क्या है? यूहन्ना 5:30 के मुताबिक वहां पर लिखा है, जिसने मुझे भेजा है मैं उसके मुताबिक अदालत करता हूं। आमीन। लिहाजा भेजे हुए लोगों की हैसियत से हम अदालत करते हैं। Praise the Lord। हमारे सारे फैसले, हमारी सारी यह जजमेंट जो है वो किसके सबब से होती है? बोलिए, भेजने वाले के सबब से, उसकी कुव्वत से, उसके इख्तियार से। आमीन। हमारी जिंदगियों के अंदर जो है हम क्यों या फैसला नहीं कर पाते या जजमेंट नहीं कर पाते? क्यों? इसलिए कि हम शायद जो है अपने तरीके के साथ चलने की कोशिश करते हैं, या शायद आप प्रोटोन बलीवर नहीं हैं, शायद जो है आप पहले ईमानदार नहीं हैं, जिसके सबब से आप क्या कर रहे हैं? या अदालत का काम जो है जारी नहीं कर रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह क्यों अदालत करता है? उसकी अदालत क्यों रास्त है? क्योंकि वो अपने भेजने वाले के सबब से जो है वो क्या करता है? अदालत करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब यूहन्ना 8वां बाब उसकी 29 आयत में पढ़े, तो यीशु मसीह जो भेजा हुआ है, जिसे उसके बाप ने उसे भेजा है, तो वो क्या कहता है? गौर से सुनिए, लिखा है कि मैं वही काम करता हूं जो उसे क्या है? पसंद है। मैं अपने भेजने वाले के जो है कि मर्जी को पूरा करता हूं और वो काम करता हूं जो उसे क्या है? पसंद है। लिहाजा प्रोटोन बलीवर्स क्या करते हैं? पहली बात, वो अपनी जिंदगी और अपनी कुव्वत कहां से हासिल करते हैं? वो जो है किसका काम करते हैं? वो किसकी गवाही देते हैं? वो अदालत कैसे करते हैं? सबब से। आमीन। उनको इख्तियार है। और फिर वो कौन से काम करते हैं? बोलिए, जैसा भेजने वाले ने उनको किया, वो वही काम करते हैं जो उसे क्या है? बोलिए, पसंद है। लिहाजा प्रोटोन बलीवर्स क्या करते हैं? ये सारे काम उनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर होते हैं। हालेलुया। कौन सी और खुसूसियत है जो उन्हें अव्वल रखती हैं कि ये अव्वल जो है बलीवर हैं, अव्वल ईमानदार हैं, ये पहले ईमानदार हैं, ये प्रोटोन बलीवर्स हैं। आमीन। उनकी जिंदगियों से क्या जाहिर होता है?
वो क्या रेफर करते हैं, क्या उनकी जिंदगी से यह आप देख सकते हैं। पहली बार गौर से सुनिए आप, फर्स्ट बिलीवर जो है वो क्या पेश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। क्या पेश करते हैं वो, क्या आप प्रोटोन बिलीवर हैं तो फिर आपको क्या शो करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को प्यार करना होगा। वो क्या रेफर करते हैं, फर्स्ट बिलीवर्स जो हैं, प्रोटोन बिलीवर्स के हैं, वो क्या करते हैं, वो मिरास और बरकत में पहले नजर आते हैं। इनहेरिटेंस एंड ब्लेसिंग के अंदर आप जो है उनको जो है अव्वल देखेंगे। आमीन। फिर आप उसे उनको इख्तियार के अंदर, अथॉरिटी के अंदर जो है उन्हें अव्वल देखेंगे। आमीन। क्या आप प्रोटोन बिलीवर हैं? प्रोटोन बिलीवर से क्या मुराद नहीं जाएगी। ये क्या रेफर करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते हैं। वो किसको शो करते हैं? अगर प्रोटोन बिलीवर हैं, आया नहीं आया तो ना आया, हाँ आए तो आए, नहीं आए तो ना आए। तो ना चाहिए प्रोटोन बिलीवर्स कौन है, आए और फिर आए और फिर आए और फिर आए। हालेलुया। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। मुझे ये पता है कि नरगिस और उनके बच्चे कहाँ गए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कई औरों का नहीं पता कि वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यह नहीं पूछना, इसका मतलब है प्रोटोन बिलीवर्स क्या करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को शो करते हैं। आमीन। प्रोटोन बिलीवर्स क्या करते हैं, जो उनकी खसूसियत है, वो जिंदगी को हासिल करते हैं, वो उसका बेचने वाले का काम करते हैं, वो उसकी गवाही देती हैं, वो अदालत करते हैं, वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं जो उसे पसंद आती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में अव्वल हैं, वो मिरास और जो है बरकत में अव्वल है, वो इख्तियार में अव्वल है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको ये शर्फ है, उनको ये प्रिविलेज है कि वो अवलीन हैं, वो अवलीन कहलाते हैं। रसूल पहले रसूल। आमीन। पहले कौन है, रसूल। इसी तरह पहले प्रोटोन बिलीवर्स भी हैं। आमीन। इसी तरह पहले ईमानदार भी हैं जो इस दर्जे में आते हैं। इसका मतलब यह ईमानदारों के बहुत सारे दर्जे हैं। क्या आप उन दर्जों में हैं? प्रोटोन बिलीवर्स बनना चाहते हैं? बोलिए आमीन। बोलिए। क्या आप कोई हाथ खड़ा करके मैं प्रोटोन बिलीवर बनना चाहता हूं? हालेलुया। खड़े होकर, She is a proton believer. Hallelujah. Who is the proton believer? हालेलुया। हाथ खड़ा कर रहे हैं जो प्रोटोन बिलीवर बनना चाहता है। इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है, आपको अपनी मिरास और बरकत में पहले नजर आना होगा। अपने इख्तियार के अंदर आपको क्या नजर आना होगा? हालेलुया। अव्वल होने के फायदे हैं। आमीन। अव्वल होने के क्या है, ये फायदे हैं। ये दिल पसंद मर्तबा है। इट्स अ फेवरेट प्लेस। आमीन। ये दिल पसंद क्या है, ये मर्तबा है। मुझे अव्वल होने का मर्तबा चाहिए। पहले रसूल, अगर रसूल पहले हैं तो ये एक बड़ा दिल पसंद या बड़ा फेवरेट यह वो क्या है, वो मकाम है। अगर मैं कहता हूँ मैं अव्वल हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ अव्वल होने का या सबूत नहीं देता, तो फिर यह है मैं अव्वल नहीं हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम होजिस जो है खुदा का बंदा जो है, स्कॉलर है, वो कहते हैं वो जो सबसे पहले हैं, वो जो सबसे पहले, यानी वो जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं, वो पायनियर हैं, वो पायनियर्स हैं। वो जो सबसे पहले ईमानदार हैं, जो सबसे पहले हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो पायनियर्स हैं, वो रास्ता दिखाने वाले हैं। प्रोटोन ईमानदार वो बकिया हैं। और से सुनिए, प्रोटोन ईमानदार वो बकिया हैं जो चर्च में सुर और रुख तय करते हैं। ये जिम होजिस कहती है। क्या कहता है वो जो सबसे पहले हैं, वो पायनियर्स हैं। वो क्या कहलाते हैं? पायनियर्स हैं। आप पायनियर समझते हैं? वो भी जो पायनियर की भी मैं और डेफिनेशन आपको देता हूँ। जो पायनियर्स हैं, जो सबसे पहले हैं, वो क्या है? वो पायनियर्स हैं, वो रास्ता दिखाने वाले हैं। और प्रोटोन ईमानदार वो बकिया हैं,
ठीक है, प्रोटोन ईमानदार वो बकिया है, रेमिनेंट हैं जो चर्च में सुर, टोन होती है ना, एक सुर चर्च की टोन है, और जो है डायरेक्शन तय करते हैं। आमीन। क्या आप प्रोटोन बिलीवर हैं? अगर प्रोटोन बिलीवर हैं तो फिर पायनियर्स होंगे। अगर आप प्रोटोन बिलीवर्स हैं तो आप वो बकिया हैं, आप वो बुझाए हुए लोग हैं जो चर्च में सुर और जो है रुख, जो है डायरेक्शन तय करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और पायनियर का क्या मतलब होता है? ठीक है, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन ले लिया। पायनियर्स पाथ फाइंडर क्या होते हैं? पाथ फाइंडर, जो क्या करते हैं? रास्ते तलाश करते हैं। ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है जो पगडंडियां बनाते हैं, जो रास्ता जो है बना देते हैं। ट्रेल, ट्रेलिंग करते हैं, जो ट्रेल करते हैं, ठीक है, जो रास्ता बनाते हैं, जिसको देखकर लोग उसके ऊपर मूव करते हैं। जब पगडंडी बन जाती है तो वो रास्ता बन जाता है। तो पायनियर्स वो क्या करते हैं? एक ऐसी पगडंडी बना देते हैं, एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिसके पीछे लोग मूव करते चले जाते हैं। ये एक्सप्लोरर हैं, जो क्या करते हैं? चीजों को जो है एक्सप्लोर करते हैं, उसको खोलते हैं, उसको जो है बड़ा बनाते हैं। आमीन। पायनियर्स क्या करते हैं? वो चीजों को बड़ा बनाते हैं। What the pioneer do, वो क्या करते हैं? बड़ी चीजों को बड़ा बनाते हैं। Amen. Praise the Lord. और फिर ये फोर रनर्स हैं। ये क्या है बोलिए? यानी ये पेशरो हैं, यानी आगे चलने वाले हैं। आमीन। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या था? वो क्या पेशरो था, मसीह का पेशरो था। पायनियर्स का क्या मतलब होता है? पायनियर्स का मतलब है पाथ फाइंडर, ट्रेल ब्लेजर, एक्सप्लोरर, फोर रनर्स, और फिर आखिरी एक और बात सुनी, इनोवेटर्स होती हैं। इनोवेटर क्या होते हैं? जो नए नए ख्यालात को, नए नए आइडियाज को वो जन्म देते हैं। आमीन। ये पायनियर्स हैं। लिहाजा प्रोटोन बिलीवर्स पायनियर्स होते हैं। हालेलुया। लिहाजा अगर आप प्रोटोन बिलीवर हैं, आप रास्ते बनाने वाले हैं, आप चीजों को ओपन करने वाले हैं, रास्तों को दिखाने वाले, रास्तों को बनाने वाले, आप आगे चलने वाले हैं। आप नए ख्यालात मसीह के अंदर, नए मकाशफात, नए जो है इरादे, नए ख्यालात जो मसीह के बदन की तरक्की के लिए है, ये प्रोटोन बिलीवर्स काम करते हैं। हालेलुया। पायनियर्स का और भी मतलब है। इसका मतलब ये है टू सेट इन मोशन, जो क्या करते हैं? हरकत में रहते हैं। लिहाजा प्रोटोन बिलीवर्स क्या है? जो है पहले ईमानदार जो है वो क्या करते हैं? वो हरकत में रहते हैं। क्या करते हैं वो? लिहाजा आज से ये आपको ये तय करना पड़ेगा कि मैं अव्वल दर्जे का ईमानदार हूँ। आमीन। मैं अव्वल जो है ईमानदार हूँ। आमीन। इसमें आपको क्या करना होगा? राह दिखाने वाले बनना होगा, आप पगडंडियां बनाने वाले बनना होगा। आपको नए ख्यालात मसीह के लिए, उसके लिए नए नए मकाशफात में आपको क्या तरक्की करना होगा, आपको पेशरो बनना होगा। हालेलुया। और पायनियर्स क्या करते हैं? जो सबसे पहले गेम स्टार्ट करते हैं। आमीन। स्टार्ट द बॉल रोलिंग, यानी वो जो है जब बारी होती है ना, पहले ये इसकी पहली बारी है। आमीन। तो पायनियर्स जो है उनको कहा जाता है जो पहली बारी लेते हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्टर होते हैं। आमीन। ये स्टार्टर हैं। ये क्या करते हैं? ये ब्रेक द आइस, ये तो आइस जो है वो खामोशी को तोड़ देती हैं, वो कूद को खत्म कर देती हैं और एक नई चीजों को जन्म देती हैं। आपकी हैसियत एक ईमानदार के तौर पर ऐसी होनी चाहिए। आमीन। आप किस पर जिंदगी बसर कर रहे हैं? आप जो है सारा हफ्ता 6 दिन जो है शायद इस बात के लिए कोशिश के अंदर हैं कि मैं क्या करूंगा, जो है संडे के लिए तैयारी करूंगा, लेकिन 6 दिन के लिए आपको जो है क्या करना होगा? पायनियर की हैसियत से जो है क्या करना होगा? हरकत में आना होगा। आमीन। आपको क्या करना होगा? आपको पाथ फाइंडर बनना
बनना होगा, आपको ऐसा रास्ता तलाश करना होगा जिसके जरिए से आप बहुतों को खुदावंद के करीब लेकर आने वाले बनना होगा। यानी वो क्या काम करना होगा, उस जिंदगी और कुव्वत को जो जिसने हमें भेजा है वो हासिल करके या उसकी गवाही देना होगी और वो उसके दिल पसंद कामों को करना होगा। और फिर ऐसी जगहों के ऊपर भी हमें जो है खड़ा होना होगा जहां पर हमें जजमेंट को जारी करना भी होगा। आमीन। लिहाजा पायनियर्स कौन है? जो एस्टैब्लिश करते हैं। ये क्या करते हैं? जो पत्थर रखते हैं, जो न्यू रखते हैं। आमीन। जो इंट्रोड्यूसर हैं, जो मुतारफ कराने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये वो चीजें हैं जो प्रोटोन ईमानदारों में पाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? क्या आप इसी तरह जिंदगी बसर करते रहेंगे? हम इसी तरह चलते रहेंगे, आए और चले गए, आए और चले गए और आए और चले गए। अब हमें क्या करना होगा? आए और फिर कुछ करके जाएंगे। आमीन। इस जमीन पर हमारा आने का, हमें भेजने का एक मकसद है। हम प्रोटोन बिलीवर बनेंगे। हम जो है पहले ईमानदार बनेंगे जो तरतीब में, वक्त में, अहमियत में जो है वो खास हैसियत रखते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याद अगर मैं अव्वल ईमानदार हूँ, मैं अगर प्रोटोन बिलीवर हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा? वक्त में, जगह में और तरतीब में और अहमियत में क्या होगा? अव्वल, फर्स्ट बिलीवर। आमीन। या प्रोटोन बिलीवर या फिर इसे अपोस्टोलिक बिलीवर भी कहा जा सकता है। इसको यूं भी कहा जा सकता है रसूली ईमानदार। आमीन। जो भेजे हुए ईमानदार हैं, जिनको मसीह में खुदावंद ने भेजा है। तुम पर सलामती हो, जिस तरह मुझे बाप ने भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। और ये प्रोटोन जो है अपोस्टल्स थे, प्रोटोन बिलीवर्स थे। आमीन। और सुनिए कुछ चंद और चीजें भी हैं जो प्रोटोन ईमानदारों में जो है आती हैं। वो अपने आप में फर्स्ट नजर आती हैं। ये पहले हैं। आमीन। पहले किस में हैं? ठीक है। कितनी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई? क्या 1 मिनट में कोई आकर बता सकता है? 1 मिनट, 1 मिनट इसको समराइज करें। मैं इसलिए ये सारी चीजें इसलिए हैं, मैं आपको इस तरह रुखसत नहीं करना चाहता कि आप सुनकर चले जाएं और फिर आप अपने तरीके के साथ जिंदगी बसर करें। माय डियर, ये जो है प्रोटोन बिलीवर्स जो है वो बड़े खास लोग हैं, वेरी स्पेशल पीपल। आमीन। वेरी स्पेशल पीपल, क्योंकि ये खुदा ने उनको भेजा हुआ है इस काम के लिए। आप सेकंड दर्जे के ईमानदार हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है। कौन सा है? बोलिए। फर्स्ट बिलीवर। और कौन है? सेकंड दर्जे का बिलीवर है इधर बैठा हुआ? हर एक शख्स ये कहेगा कि मैं फर्स्ट बिलीवर हूँ। नबी ये तरतीब में, मैं तरतीब में बाइबल में या खिदमतों की तरतीब में जो है वो पहला रसूल, फिर दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़ा दिखाने वाले, शिफा देने वाले, मुंतज़िम, मददगार और जो है ज़बानें बोलने वाले, ये सारे तरतीब है। लेकिन याद रखिए प्रोटोन बिलीवर में जो है सेकंड बिलीवर नहीं होते हैं। इसमें प्रोटोन में बिलीवर में प्रोटोन बिलीवर ही होते हैं। प्रोटोन बिलीवर इज अ प्रोटोन बिलीवर। ठीक है। बिलीवर्स की क्या जो है डेफिनेशन होगी? ठीक है। He is a proton believer and he is not a second believer. आमीन। Praise the Lord। वो दूसरे दर्जे का ईमानदार नहीं है, वो ईमानदार हमेशा पहले दर्जे का ईमानदार है। वो अव्वल जो है ईमानदार है। Amen। Praise the Lord। लिहाजा कुछ और भी चीजें हैं जो उसके अंदर जो है फर्स्ट नजर आती हैं। फर्स्ट नजर आती हैं। 13 चीजों को मैं आपके दरमियान में रखना चाहता हूँ। फर्स्ट इन पावर, ठीक है, जो ये शो करती है कि वो क्या है? ताकतवर है। ही इज अ पोटेंटेड, ही इज अ पोटेंटेड। फर्स्ट इन पावर, जो इस बात को पेश करती है कि वो क्या है? पावरफुल है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा खुदा ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट है। इसी तरह जब फर्स्ट बिलीवर जो होते हैं, जो फर्स्ट इन पावर, जो पावर में, कुव्वत में, जोर में, स्ट्रेंथ में क्या है? फर्स्ट है। आमीन।
जो प्रोटॉन बिलीवर है वो किस में फर्स्ट है? इन पावर, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है, जो इस बात को पेश करती है कि वो क्या है? पोटेंटेट हैं, यानी ताकतवर हैं। आमीन। लिहाजा आप किस में यह ताकतवर हैं? आप फर्स्ट हैं। किसमें? ताकत में फर्स्ट हैं। आप सेकंड दर्जे में पावरफुल नहीं है। जब आपकी ताकतवरी का जिक्र किया जाएगा, आपकी पोटेंटेशन का जिक्र आएगा, पोटेंटेट होने का जिक्र आएगा, तो आपका नंबर क्या होगा? बोलिए, फर्स्ट। आमीन। आपकी ताकत का जब जिक्र किया जाएगा तो क्या जिक्र किया जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट। आप फर्स्ट हैं। आमीन। फिर आप फर्स्ट इन अथॉरिटी। किसमें फर्स्ट हो? प्रोटॉन बिलीवर आर फर्स्ट इन अथॉरिटी। वो इस बात को प्रेजेंट करता है, ये इस बात को प्रेजेंट करता है कि वो एक लीडर है, वो एक रूलर है। आमीन। अगर आप अथॉरिटी में फर्स्ट हैं तो फिर आप क्या होंगे? बोलिए, लीडर। और फिर क्या कहलाएंगे? रूलर। आमीन। अगर आप रूलर नहीं है तो इसका मतलब है आप फर्स्ट इन अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी अथॉरिटी के दर्जे शायद डिफरेंट हैं या बड़े आगे की तरफ है। इस वजह से आप जो है रूल नहीं कर रहे और आप लीडर नहीं हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप फर्स्ट इन रैंक है, रैंकिंग के अंदर आप फर्स्ट आए। आमीन। जब कोई शख्स जीतता है तो उसका रैंक बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो प्रोटॉन बिलीवर जो हैं वो क्या है? वो फर्स्ट इन रैंक है। आमीन। वो किस में है? बोलिए, फर्स्ट इन रैंक। और जब ये आप रैंक में या किसी रैंक के अंदर फर्स्ट हैं तो इसका मतलब है आप उस या कंपनी में, आप उस जगह में या कैप्टन है या जनरल हैं। हालेलुया। चुनाचे आप ये देखिए आर्मी में या किसी और जगहों के ऊपर रैंकिंग होती है 1 2 3 4 5 6 और जो है, और जो फर्स्ट रैंक में आते हैं उनको जनरल कहा जाता है, उनको कैप्टन कहा जाता है। आमीन। टीमों के अंदर कैप्टन हैं, टीमों में जनरल्स हैं। लिहाजा यह एक बात याद रखिए कि खुदावंद की कलीसिया में यह तमाम ईमानदारों का एक ही दर्जा है और वो यह अपने रैंक में कैप्टन, जनरल, रूलर, लीडर और ताकतवर हैं। हालेलुया। और फिर और से सुनिए अगली बात, ये चीजों को आप सुनकर चले जाएंगे। आप इस मैसेज को YouTube पर सुनिएगा, ठीक है? ताकि आप इसको लिखें, आप इसे सुनें, आप इसे पढ़ें, आपके अंदर की चीजें चलनी चाहिए ताकि आगे चलकर आप क्या करें? इनको जो है रिपीट कर सकें। आमीन। ये आपकी अगले मैसेजेस के अंदर आपकी मदद करेंगे। आमीन। फिर फर्स्ट इन नॉलेज। किसमें फर्स्ट आते हैं? फर्स्ट इन नॉलेज। और जब ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जब वो फर्स्ट इन नॉलेज होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है? जो डॉक्टरेट जो है वो इसका मतलब है वो डॉक्टर इसलिए है कि वो नॉलेज में क्या है? वो फर्स्ट है। प्रोटॉन बिलीवर जो है नॉलेज में भी फर्स्ट है। आमीन। क्या आप सिर्फ जो है मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक है? पास्टर कैथरीन डॉक्टर बने, ठीक है? अपने भाई सालिक डॉक्टर बने या कोई और डॉक्टर बने, जो है ये नहीं। गौर से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए। प्रोटॉन बिलीवर जो है वो फर्स्ट इन नॉलेज भी हैं। आमीन। फर्स्ट इन नॉलेज। रिप्रेजेंट क्या करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर होने को पेश करती हैं, यानी वो आलिम और फाजिल होने को पेश करते हैं। हालेलुया। इसलिए आप ये देखिए कि जो मसीह के इल्म से मामूर हैं, जब उनकी जिंदगी में यह मार्फत का रूह काम करता है, वो क्या करते हैं? जब वो किसी के सामने बैठते हैं और उनको जो शैतान के चुंगल से या इल्म के जरिए से निकाल कर जो है वो मसीह के पास लेकर आते हैं, ये शो करते हैं कि वो फर्स्ट इन नॉलेज हैं। आमीन। जब जो है बिदअत का खात्मा करते हैं या किसी की जिंदगी के अंदर जो है तालीम का फुकदान है, आप उसे तालीम दे देते हैं तो आप ये बयान करते हैं, आई एम अ प्रोटॉन बिलीवर। हालेलुया। अगर आपने इल्म से किसी को जो है जीत लिया है तो आप जो फर्स्ट इन नॉलेज हैं। आमीन। ये बातें आपके ऊपर से नहीं गुजर रही हैं, आप जाग रहे हैं। जब जाग रहे हैं तो आप हाथ हिलाएं।
Praise the Lord. ये तो बड़ी बात है कि आप सब जाग रहे हैं. Hallelujah. Praise the Lord. First in time. First in time. First in proton believers क्या कहलाते हैं? First in. ठीक है. First in. जो first in time है हाथ खड़ा कर रहे हैं. First in time, always in first in time, always first in time. ओह मेरी बीवी ने हाथ खड़ा किया हुआ है. ठीक है. ये भाई याज की बीवी ने हाथ खड़ा किया है. और पीछे एल्डर साहब की बीवी ने हाथ खड़ा किया. एल्डर साहब ने. वेरी गुड. और आप फर्स्ट इन टाइम हैं. फर्स्ट इन टाइम. आप बताइए मुझे चर्च का टाइम क्या? अभी ये अगली बातें हैं. प्रोटोन बिलीवर्स बहुत आगे की बातें. फर्स्ट इन टाइम बोलिए. हाँ बोलिए. एक खड़ा होकर बोले भाई. खड़े होकर बोलिए. 9:30. हाँ जी कोई और बोले. 9:30. हाँ जी 9:30. और कोई ऊंची आवाज से बोले पीछे. हाँ जी. फर्स्ट इन टाइम. हु इज प्रोटोन बिलीवर? फर्स्ट इन टाइम. ठीक है. फर्स्ट इन टाइम. जो वक्त में क्या है? टाइम में, औकात में या फर्स्ट है. औकात में फर्स्ट है, टाइमिंग में फर्स्ट है, टाइम में फर्स्ट है. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आप गौर से सुनिए. आप गौर से सुनिए. जब कोई शख्स फर्स्ट इन टाइम है, जो टाइम में यह प्रोटोन है, जो टाइम में यह वो क्या है? फर्स्ट है. जो टाइम में अव्वल है, पहले है, वो अपने आप को पेश करते हैं कि दे आर पायनियर्स. आमीन. वो क्या है? वो पायनियर्स हैं. आमीन. वो क्या कहलाते हैं? वो पायनियर्स कहलाते हैं. मैंने भी पायनियर्स के हवाले से बहुत सारी चीजें आपको बयान की है. वो पाथ फाइंडर हैं. ठीक है. वो क्या है? वो इमोशन है. वो क्या करते हैं? वो इनिशिएटिव लेते हैं. वो कोई काम को का आगाज करते हैं. इसलिए वो टाइम जो है फर्स्ट इन टाइम है क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लेना है. वो सबसे पहले काम करते हैं. वो सबसे पहले टाइम पर होते हैं. अगर आप प्रोटोन बिलीवर हैं, अगर आप अव्वल दर्जे के ईमानदार हैं, अगर आप पहले ईमानदार हैं, तो आप जो है आप अपने आगाज कहां पर करेंगे? बिलीवर्स कहां पर पहचाने जाते हैं? बोलिए. हाँ जी. पास्टर कैथरीन क्या कहती हैं? ऊंची बात से जो प्रोटोन बिलीवर है वो चर्च में पहचानना चाहते हैं, कलीसिया में पहचानना चाहते हैं. बिलीवर की जो शिनाख्त है, इसका स्टार्ट या आगाज जो है वो कहां पर होता है? बोलिए. वो चर्च में. कि ये ईमानदारों की जमायत है. आप इस वक्त ईमानदारों की जमायत के तौर पर बैठे हुए हैं. लिहाजा आपको क्या करने की जरूरत है? फर्स्ट इन टाइम जो कि आप पायनियर्स हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. लिहाजा ये चीजें आपको अपनी जिंदगी के अंदर दिखाना होगी. तो 9:30 आ जाएगा. कितने बजे? 9:30. 9:30. चलो देख लेते हैं कौन है जो प्रोटोन बिलीवर साबित करेगा अपने आप को. वो कम लोग हैं जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं. चर्च में बहुत कम लोग हैं जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं. वेरी क्योंकि बाकियों का दिल नहीं करता प्रोटोन बिलीवर बनने का. हाँ नहीं बनता. बनते. चलो कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोटोन बिलीवर्स बनाएं. इससे आप क्या दिखाएंगे? इससे क्या पेश होगा? इससे क्या जाहिर होगा? ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप रेवोल्यूशंस के अंदर आप मुकाशिफों में अव्वल हैं. आमीन. पौलुस रसूल प्रोटोन नाज़िर अपोस्टल था और बहुत बड़ा यह वो प्रोटोन बिलीवर भी था क्योंकि उसके ऊपर मुकाशिफों की ज्यादती थी. आमीन. और जो है इब्तदाई कलीसिया में हर एक शख्स जो है, हर एक इब्तदाई चर्च का जो बंदा जो है, बहन थी, भाई था, वो सब प्रोटोन बिलीवर्स थे. और वो जो है फर्स्ट इन रेवोल्यूशन थे. आमीन. उनके ऊपर मुकाशिफात जो है कसरत से थे. और ये क्या शो करता है कि ये प्रोफेटिक पीपल है. ये क्या है? ये नबूवती लोग हैं. प्रोफेटिक पीपल.
परफेक्ट पर्सन है। अगर आप अपने अंदर दिखाना चाहते हैं कि आई एम परफेक्ट ये है वो बिलीवर हूँ, तो आपको रेवलेशन के अंदर जो फर्स्ट होना होगा। इसके लिए ये चीजें मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। आप जो है कलाम में झांकिए, आप दुआ में बैठिए, आपके रेवलेशन आएंगे। ये दुनिया में फिरने से, ये है ये टिकटॉक देखने से, या जो है ये और दूसरी किसी चीजें देखने से जो है वो रेवलेशन नहीं आते। ये रेवलेशन जो है ये खुदा के कलाम को देखने और जो है आसमान की जो है खुलते हुए देखने में आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट इन सफरिंग, किसमें? फर्स्ट इन सफरिंग। सफरिंग के अंदर भी क्या है? वो अव्वल है। किसमें है वो? और इससे क्या हुक्म में आता है? इससे जो है ये बयान करते हैं, ये शहादत को बयान करते हैं कि अगर हम सफरिंग में अव्वल हैं तो हम शहादत जो है रखते हैं। आमीन, हम शहादत का जज्बा रखते हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर कितने हजारों जो ईमानदार सिर्फ रसूल ही शहीद नहीं हुए हैं। उन्होंने ही नहीं सिर्फ जो है वो दुख और मुसीबत पाई है, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे ईमानदार थे, उनको प्रोटोन बिलीवर कहना जो है वो बजा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? शहादत का दर्जा पाया है। उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि वो सफरिंग उन्होंने सबसे पहले ली है। हालेलुया, ब्लेसिंग के अंदर फर्स्ट हैं। ब्लेसिंग के अंदर पहले में शुरू होता है। ब्लेसिंग के अंदर क्या है? वो फर्स्ट है। जिससे क्या पेश होता है कि ये जो है फर्स्ट बोर्न है, यानी पलौठे हैं। आमीन, बरकत में क्या है? वो फर्स्ट है। इसलिए कलीसिया को क्या कहा जाता है? पिलोटों की आम जमात। हालेलुया, पिलोटों की क्या कहा जाता है उसको? आम जमात। इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस। हालेलुया, इसमें पिलोटों की आम जमात है। अब ये वो लोग हैं जिनको बरकत मिली है, जो पहली बरकत हासिल हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर फर्स्ट इन बिलीविंग, यह ईमान रखने में पहले। आमीन, ईमान रखने में क्या है? वो पहले। ये पहले फलों की जो निशानदेही करते हैं कि ये पहले फल है। आमीन, जिन्होंने यकीन किया है। ये फर्स्ट इन ब्लेसिंग है, ये फर्स्ट इन पोजेसिंग है, यानी कब्जा करने में ये क्या है? ये फर्स्ट है। जो इस बात की निशानदेही है कि ये जनरेशन में यीशुआ है। आमीन, ये यीशुआ की नस्ल से है जो क्या करते हैं? जो कब्जा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, ये बातें मैं आपको बयान कर आपके दिल को जोश दिलाना चाहता हूँ, आपके अंदर जो है आग लगाना चाहता हूँ कि हम अपनी हैसियत को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनिए, यह ये 13वीं बात जो है आप इसको सुनिए कि ये जो प्रोटोन बिलीवर्स हैं, ये फर्स्ट इन ब्रेक थ्रू है। आमीन, ये क्या करते हैं? ये ब्रेक थ्रू ये में भी अव्वल हैं। किसमें? बोलिए, ब्रेक थ्रू में अव्वल हैं, जो पेश करते हैं कि हम एक नए लेवल के लोग हैं। आमीन, एक खास लेवल के लोग हैं जो ब्रेक थ्रू करते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? पेश रफ्त करते हैं, जो किसके अंदर पेश कदमी करते हैं। ठीक है, जो रुकावटों और पाबंदियों को रद्द कर कर उसको अबूर कर कर एक अमल या एक मिसाल बनते जाते हैं। आमीन, लिहाजा जो प्रोटोन बिलीवर हैं वो फर्स्ट इन ब्रेक थ्रू है। हालेलुया, और ये पेश करते हैं, ये बयान करते हैं कि हम कोई एक खास लेवल के लोग हैं। आप यानी या प्रोटोन बिलीवर वो एक खास लेवल के लोग हैं जो क्या करते हैं? ये ब्रेक थ्रू देते हैं। जहां पर पाबंदियां हैं, जहां पर क्या है, यहाँ पर यह रुकावटें हैं, ये उनको क्या करते हैं? ब्रेक थ्रू देते हैं और उनको तोड़कर उनको अबूर कर जाती हैं और उनको उनमें से निकल जाते हैं। ये पिछले दो सेकंड लास्ट सीरीज मैंने ब्रेक थ्रू के ऊपर डिटेल के साथ बताई है। वो अपने अंदर ब्रेकर को रखते हैं और ब्रेकर एनॉइंटिंग उनकी जिंदगी के अंदर होती है। प्रोटोन बिलीवर्स ऐसी खुसूसियत के हामिल लोग हैं। आमीन, वो पावरफुल हैं, वो अथॉराइज्ड हैं, वो यह कैप्टन हैं, वो डॉक्टर हैं, वो पायनियर्स हैं, और वो यह फर्स्ट इन अपने कबीलों में फर्स्ट हैं, लाइनेज में फर्स्ट इन लाइनेज, जिससे वो बयान करते हैं वो कबीलों के सरदार हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो
सरदारी को पेश करते हैं, वो बुजुर्गी में पीढ़ी को वो पेश करते हैं कि हम लाइनेज में, हम अपने कबीले में, अपनी हैसियत में वो फर्स्ट हैं। लिहाजा प्रोटोन बिलीवर आपको हर जगह के ऊपर क्या नजर आएंगे? प्रोटोन नजर आएंगे। वो जो है क्या नजर आएंगे? वो पहले अव्वल नजर आएंगे। और ईमानदारों, आपको अपनी हैसियत को बयान करना होगा, आपको जो है अपनी जो है अव्वल होने के दर्जे को दिखाना होगा और रास्तों को अबूर करना होगा, रुकावटों को तोड़ना होगा, इलाकों में, नए खेतों में, नई जगहों में यह पेशकदमी करना होगी। यह है ब्रेक थ्रू। हालेलुया। फर्स्ट इन ब्रेक थ्रू आप यह मूव कीजिए, यह खेतों में, इलाकों में आगे बढ़िए। हालेलुया। कि खुदा जमीन पर हमारे वसीले से कुछ करना चाह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता बना लेते हैं, वो रास्तों पर चलते हैं जो उन्होंने बनाए रास्ते, वो उनको फॉलो करते हुए उनमें से निकल जाती हैं। अगर जहाँ पर जरूरत है नए रास्ते वो बना लेते हैं। इतनी अथॉरिटी, इतनी कुव्वत, इतनी या ब्रेक थ्रू पावर अपनी जिंदगी के अंदर रखते हैं। अजीज भाई वंस अगेन आई से कि आप प्रोटोन बिलीवर होने की हैसियत को समझें। आमीन। पहले बोलिए क्या है? पहले रसूल, फिर नबी, फिर उस्ताद। ये रैंकिंग है, यह खुदा ने कलीसिया के अंदर रखी हुई है। लेकिन कलीसिया के अंदर एक खास रैंक रखा हुआ है जिसमें यह कोई दूसरा रैंक नहीं है, और वो क्या है? प्रोटोनिक बिलीवर्स। उसमें सेकंड दर्जे का बिलीवर नहीं कबूल है। इसमें कौन सा बिलीवर जो है वो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है? बोलिए पहले दर्जे का प्रोटोनिक बिलीवर। आमीन। तो कलीसिया में कौन से बिलीवर्स होने चाहिए? बोलिए अव्वल। आमीन। जो किसमें है? पावर में, अथॉरिटी में, रैंक में, नॉलेज में, लाइनेज में, टाइम में, रेवोल्यूशन में, सफरिंग में, बिलीविंग में, रिसीविंग में, ब्लेसिंग में, पोजेसिंग में और ब्रेक थ्रू में। आमीन। लिहाजा पायनियर जो है, पायनियर बनिए, पाथ फाइंडर बनिए, पगडंडियां बनाइए, रास्ते बनाइए, जो है फाउंडेशंस रखिए, रास्ते तलाश कीजिए, रुकावटों को तोड़िए, अबूर कीजिए और बता दीजिए मैं मसीह की गवाही दूंगा, मैं वो काम करूंगा जो उसे पसंद है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूंगा, मैं उसके से काम करूंगा, मैं अदालत को जारी करूंगा। हालेलुया। मैं जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी के अंदर दिखाऊंगा। आई विल शो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना होगा। आमीन। अपने सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए अपने आप को देखिए। अगर आप जो है थोड़े से खिसक गए हैं, आइए अपने दर्जे के ऊपर खड़े हो जाएं, आइए अपने मर्तबे के ऊपर खड़े हो जाइए और अपने आप को जो है तैयार कर लीजिए कि मैं अपने भेजने वाले को की मर्जी को पूरा करूंगा, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करूंगा। हालेलुया। वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट, वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट। सब अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करें।